नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस प्रदर्शनी के विषय में विजय भाई से और जानने की कोशिश करते हैं और मैं बताना चाहूँगा ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन काम के साथ विजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको इनके काम देखकर एक अलग अनुभूति होगी और इतने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने चीज़ों को बनाया है जो ग्लास में बहुत मुश्किल होता है काम करना इस तरीके से। तो आने वाले जो भी स्लाइड्स हैं, जो भी काम है, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। जय हिंद। મારું નામ વિજય રોય અને હું છેલ્લા 21 વર્ષથી ગ્લાસમાં કામ કરું છું અને ગ્લાસમાં અવનવી ટેકનિકથી લઈને ઘણું બધું મને એક ક્યુરિયોસિટી રહેલી છે કે કંઈક નવું કરવાની, અને ગ્લાસમાં દરેક પ્રકારની ટેકનિકમાં મેં કામ કર્યું છે અને દરેક પ્રકારના ગ્લાસમાં પણ કામ કર્યું છે, જે રીતના સોડા ગ્લાસ હોય કે પછી સાયન્ટિફિક ગ્લાસ હોય, એ રીતે મેં ઘણું એ બંને ગ્લાસના અંદર કામ કર્યું છે। અને અત્યારે તમે જે મારા શોમાં જુઓ છો એ મેં ટોર્ચ બ્લો જેવી રીતના કે એને એમ કહી શકાય કે ટોર્ચથી કામ કર્યું છે અને બીજું ગ્લાસ ફ્યુઝિંગથી કામ કર્યું છે। આ રીતનું કામ મારું અંદર જોવા મળશે અને આ શો હું મારા ફાધરને ડેડિકેટ કરું છું, જેમને હું બાપુ કહેતો હતો, અને મારા બાપુ એક સંત હતા અને એ હમણાં કોવિડમાં એક્સપાયર થઈ ગયા, એટલે એમને મેં આ શો મારો ડેડિકેટ કર્યો છે। અને એમના સાથે થયેલી જે નાની નાની જે નજીવી બાબતો હોય એને મેં આમાં મારા જે આર્ટવર્ક છે એને એક કવિતા સ્વરૂપે વ્યુઅર સામે મેં મૂક્યું છે। અને આ શોની અંદર તમે જોશો તો ઘણા એવા નાના મારા ફાધર સાથેની વાતો છે એને મેં આની અંદર મૂકી છે। પણ એ ન હોય ત્યારે પણ એટલું જ એનું પ્રદાન છે। આ વાત આ પુત્રને ગમી ગઈ। બહુ ઓછા પુત્ર એવા હોય છે જે પિતાને આ રીતે યાદ કરતા વિજયભાઈ, એટલે તમારા પિતાશ્રી ભલે હયાત નથી પણ આપણી વચ્ચે અત્યારે અહીંયા છે અને આ જોઈ રહ્યા છે। વિજયભાઈને જરા જુદી રીતે હું જોઉં છું। કાચ જેવા બરડ માધ્યમમાં કામ કરનારા બહુ ઓછા આર્ટિસ્ટ છે અને આટલું સર્જનાત્મક કામ આ હું માનું છું કે વિશ્વકક્ષાનું કામ છે। એ આપણી વચ્ચે છે એટલે નમ્ર છે પણ એનું કામ બહુ જ મોટું છે। એને વૃક્ષને નીચેથી ઉપર બી મૂક્યું છે, એટલે એનું જે આ વર્ટિકલ તો હોય પણ ઉપરથી નીચે બાજુમાંથી બી ફૂટતું બતાવ્યું છે। અને ખાસ તો જે બહાર શિવલિંગ એમણે મૂક્યા છે આજે, તો એ શિવલિંગ અદ્ભુત છે કે જેણે દિવાલ પર અને એક બિંદુની પણ વાત કરીએ, બધી વાતોમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ એ આનંદની ક્ષણોને આપણે બતાવી લઈએ। તો સર્વપ્રથમ તો હું વિજયભાઈને એમના પત્ની રૂપલબેનને વિનંતી કરું કે શોલ અને પુષ્પ વડે આપણા આજના મુખ્ય અતિથિ પદ્મશ્રી ગુમાળપાળ દેસાઈ સાહેબને સન્માન। લખેલું તૈયાર કરી નથી આવતું, પણ આ મારા માટે મોટી પરીક્ષા હતી કે આવા કોઈ ચિત્ર પ્રદર્શનમાં જવું મિત્રોના આગ્રહને પરિણામે આવ્યો, પણ મને ન કોઈ ખબર ન ખ્યાલ। અને મારે સાચી આજે કહેવું જોઈએ કે હું આ આખું જોઈને ખૂબ અભિભૂત થયો છું। એક વ્યક્તિ પોતાના પિતાની સ્મૃતિને આવી રીતે કલા દ્વારા સજીવન કરે અને કવિતા દ્વારા સજીવન કરે, એટલે એમ લાગે છે કે આજે એમના પિતા જે એક સમયે મિલમાં કામ કરતા હતા ને પછી સંત બન્યા, એમની ચેતના આજે આપણી સૌની આસપાસ વિખરાય બને છે। કાચની વાત કરીએ ત્યારે એમ થાય કે ઈસવીસન પૂર્વે 6000 વર્ષ પહેલાં આ કાચની શરૂઆત થઈ। ક્યાંક ઇતિહાસ જોઈએ તો ખબર પડે કે લોકમાન્ય તિલક જેવાએ પણ કાચના કારખાનાની વાત કરી હતી। ત્યારે વિજયભાઈની જે કલા છે અને એનું સૌંદર્ય છે એમાં 3 બાબત છે મારી દૃષ્ટિએ। એક છે પ્રકૃતિ। વિજયભાઈને જો શોધવા જઈએ, એમના હૃદયના ઊંડાણમાં જઈએ, એમના મનના અતલને તાગવા જઈએ તો શું મળશે? તો કાચ મળશે, કારણ કે એમની પ્રકૃતિ પોતાની સ્વયં એ કાચ જેવી પારદર્શક છે। પણ એની સાથોસાથ કાચનું જે માધ્યમ છે એ સૌથી વધારે ક્ષમતા માગે છે, મોટો પડકાર માગે છે, અને એવા પડકારભર્યા માધ્યમમાં એમણે આવું કામ કર્યું। કદાચ એ એમના જીવનના મૂળમાંથી આવ્યું છે કે એમણે જીવનમાં કેટલા પડકારો ઝીલા, કેટલી મુશ્કેલી ઝીલી, શરૂઆતના તબક્કામાં ગરીબીમાંથી પસાર થયા અને એમાંથી એમણે આ આવ્યું છે। બીજું જે છે એ એમની પ્રતિભા
કે એમની પ્રતિભા કાચમાં ખૂબ નિખરે છે અને એ રીતે જુદા જુદા માધ્યમો સાથે એમણે જે કામ પાડ્યું છે અને એવી સરસ રીતે કામ પાડ્યું છે. વિજયભાઈ એ હું માત્ર 2 વર્ષથી ઓળખું છું, પરંતુ 2 વર્ષ દરમિયાન ઘણા કલાકારો મારા મિત્ર છે, એમને મળતો હોઉં, પણ વિજયભાઈ કાયમ હસતા હસતા એમનું જે આનંદિત હાસ્ય સિવાય હું ક્યારેય કશું એમની જોડે જોતો નથી. અને અમે ક્યારેક ઘણા ફંક્શનોમાં મળીએ, બધે જ મળીએ. અને જ્યારે વિજયભાઈએ મને કહ્યું કે આપે પણ આ પ્રસંગે આવવાનું છે, ત્યારે મેં એવું કહેલું કે ભાઈ તમારે હું અહીં અમદાવાદ શહેરમાં હોવો જોઈએ, બાકી તમારે ગમે ત્યારે મને કહેશો, હું હાજર થઈ જઈશ. અને આજે જ્યારે ગ્લાસ પોએટ્રીની વાત કરે છે ત્યારે એક ઘણી ઉત્તમ કલાકૃતિ એમને સર્જી છે અને એ પણ તેમના પિતાશ્રીની યાદમાં અને એમને અર્પણ કરી છે. ફરીથી વિજયભાઈને કલા ક્ષેત્રે વધુમાં વધુ આવા પ્રયોગો, આવી કૃતિઓ करता रहे. आभार. विजय भाई, हम जानना चाहते हैं ये शो का आइडिया आपको कैसे आया, अब इस शो के पीछे जो आपके छोटे छोटे काम हैं उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर शेयर कीजिए. शो का आइडिया मुझे ऐसे आया कि मैं मेरे स्टूडियो में एक रात काम कर रहा था और मेरा एक जूनियर है आलाप शाह करके, वो मेरे से वीडियो कॉल किया और कब ऐसे हमारी काफ़ी बार चैट होती रहती है. तो आलाप ने एक बार मुझे कॉल किया, तो रात के टाइम पे मैं स्टूडियो पे काम कर रहा था, तो वो माहौल देख के बोला कि विजय भाई अभी भी आप स्टूडियो में हो? मैंने बोला हाँ भाई काम चल रहा है. बोले क्या काम कर रहे हो? तो पीछे बहुत सारे यानी काम पड़े थे, तो वो देख के मुझे बोला कि विजय भाई ये तो इतने सारे काम आपने किए. मैंने बोला हाँ भाई कब से कर रहा हूँ, बहुत सारे काम कर दिए हैं. तो बोले आपने इसको क्या करने वाले हो? मैंने बोला कुछ करेंगे, अभी तो कुछ दिमाग में है नहीं क्या करना है. तो बोले इसका तो शो होना चाहिए. मैंने बोला यार रहने दे, शो कुछ करना नहीं, आपको शो करना ही है, आपको ये अहमदाबाद को दिखाना है और जो भी पब्लिक है इतना अच्छा काम है और आप दिखाते नहीं हो. तो उसने मुझे बहुत पुशअप किया और फिर ये शो का हमने सोचा, उसने काफी सारा हेल्प किया, पूरा ऑर्गेनाइज भी काफी सारा उसने किया. एक सपोर्ट था उसका. और फिर घर पे भी आए और हमारी वाइफ से हमने बात किया, बच्चों से बात चल रहा था, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं ये तो शो तो होना चाहिए, आप ऐसे ही काम करते रहते हो और काम ऐसे रखते रहोगे और किसी को दिखाओगे नहीं तो कैसे चलेगा. तो बस वही टॉपिक को लेके फिर लोहा गर्म था, आलाप ने हथौड़े पे हथौड़े मारे, तो ये शो निकल आया बाहर. और ऐसे टेक्निकली देखने जाओ तो ये काफी टाइम से मेरा काम चल रहा था और मैं ग्लास के अलग अलग तरीकों से काम करता हूँ, फ्यूजिंग, स्लम्पिंग, बेंडिंग, टॉर्च ब्लो, जैसे टॉर्च में काम करते हैं वो उस तरीके से कास्टिंग करता हूँ. तो अलग अलग माध्यम में मैं ग्लास के माध्यम में काम करता हूँ. तो इसमें टॉर्च ब्लो का काम है और वो रॉड से बनाए हुए बोरोसिलिकेट ग्लास से उसके रोड होते हैं और रोड्स को हमने टॉर्च के ऊपर सामने गरम रख के ये काम करना होता है. तो उस तरीके से हमने काम किया है और ये करीबन चल रहा था 6-8 महीनों से चल रहा था, उससे भी ज़्यादा. आई थिंक बोल सकते हैं कि 1-1.5 साल से ये दिमाग में चल रहा था और सारे काम मैंने इकट्ठे करना चालू कर दिए थे और कुछ काम तो मैंने बना के रख दिए थे, वो 2 साल पहले के भी हैं उसमें, लेकिन एक सोच थी तो वो मैंने ढालने का प्रयत्न किया है. जो मैंने ये शो मेरे बापू को डेडिकेट किया है
और उनकी सोच और मेरा काम ऐसे, यानी वो पिछले साल कोविड में वो एक्सपायर्ड हो गए। तो फिर एक्सपायर होने के बाद जब 1 साल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों उनकी बातों को, छोटी छोटी बातों को मैं लेके काम करूं, क्योंकि वो मेरे बहुत ही करीब थे। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे दिमाग में उनका ख्याल ना आया हो, एक पल नहीं ऐसा गया कि उनका मुझे ख्याल नहीं आया। तो वो सारी चीजें उनकी मेरे को एक, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा आधार स्तंभ चला गया हो, तो वो उनकी बार बार यादें आती थी। तो वो उनकी बातों को लेके मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ये शो का काम तैयार हुआ है। और आप देखोगे तो पहले स्क्वायर वाले जो आप काम देख रहे हो, तो उसका वो कैसे काम निकला, उसकी भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि मैं और मेरे पिताजी दोनों जब भी वो मेरे घर आते तो हम सुबह है ना चाय पीते, फिर गार्डन में वॉक करने के लिए जाते। तो वो बारिश निकलने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था, ऐसा एक माहौल था। और हम गार्डन में चल रहे थे, तो गार्डन में चलते चलते वो एकदम रुक गए और मेरे को बोला, देख ये क्या दिख रहा है। मैंने बोला, बापू बहुत ही सुंदर नजारा है, क्या मस्त ग्रास दिख रहा है। बोले, वो ग्रास को देखा तूने, कितने अच्छे अच्छे कलर है, वो मध्यम सी एक किरणें ऐसे उस पे गिर रही है, उसकी बूंदे उस पे दिख रही है, और जो कलर्स थे, जो ग्रीन कलर के अलग अलग वेराइटीज टोन थे वो दिख रहे थे। तो वो मेरे को देख के बोलते हैं, देख ये ग्लास जैसे नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला, वाह क्या बात है बापू, आप तो यार एकदम। तो बोले, तू ग्लास बना सकता है। मैंने बोला, डेफिनेटली, जरूर, मैं एक दिन बनाऊंगा। तो वो बस उनकी यादों में वो बातों को लेके मैंने ये काम किया है। तो दूसरा और एक शिवलिंग का जो काम किया है मैंने, वो बेसिकली मैं और मेरे पिताजी का बहुत ही बॉन्डिंग रहा है। लेकिन वो बॉन्डिंग में अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ ना तो और गहरा हुआ है। तो वो बॉन्डिंग में वो मुझे, यानी मेरे स्टूडियो पे आके बैठते और मुझे बोलते, यार बहुत बिजी इंसान है, तू हर दिन काम करता रहता है, मेरे लिए टाइम नहीं है। मैंने बोला, बोलो ना बापू क्या करना है। तो बोले, तेरे को ऐसे टाइम नहीं मिलेगा, अपने कुछ प्लान करते हैं। तो मैंने बोला, क्या प्लान करना है। तो वो बोले, अपने जो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो साथ में यात्रा करेंगे। मैंने बोला, वाह क्या बात है, जरूर करेंगे। लेकिन वही बात, पिछले साल कोविड में वो एक्सपायर हो गए। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग जो मैंने बनाए हैं वो उनको डेडिकेट किए। उसमें और एक कहानी है कि हम लोग दोनों एक ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे कुछ काम से। तो वहाँ रास्ते में एक शिवालय आया। तो शिवालय में जाके हमने प्रणाम किए, पूजा अर्चना की, और ऊपर में भी कुछ मंदिर थे, तो वो देखने के लिए गए। तो वो देखने के लिए जाते हैं तो एकदम ऊपर मंदिर देख रहे हैं, और ऐसे टहलते टहलते नीचे से उन्होंने देखा और मुझे बोला कि देख इधर आ, ये क्या दिखता है। मैंने बोला, बापू शिवलिंग है। बोले, यार वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या है ये। बोला, शिवलिंग है। तो बोले, यार तू अर्जुन की आंखों से देखना। मैंने बोला, बापू अर्जुन की आंखें होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। लेकिन ऐसे चलता रहा। फिर मैंने बोला, देखो आपका स्पिरिचुअल, मेरे पिताजी संत थे, तो मैंने बोला आपकी स्पिरिचुअल बातें इतने मुझे पता नहीं चलती, तो आप मुझे बताइए क्या है। तो वो मुझे बोलते हैं कि देख एरियल व्यू से देख शिवलिंग को, तो क्या दिखता है। तो मैंने बोला, शिवलिंग दिखेगा, यानी वो एक। तो वो बोले, नहीं देख बिंदु दिखेगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि शिव ही सब कुछ है। शिव जैसे कि एक बिंदु अपना उद्भव है, और डॉट अपना पूर्ण विराम। कोई भी बात करते हैं तो डॉट रखते हैं, या कोई भी चीज, तो पूर्ण विराम भी एक डॉट है, यानी बिंदु है। तो उद्भव और अंत
दोनों बिंदु है। तो उन्होंने एक चीज, एक श्लोक मुझे बोला था, उसके अंदर मैंने वो मेरे आर्ट वर्क के अंदर मेंशन किया है, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपम। बोले शिव ही सब कुछ है, शिव ही आत्मा, परम आत्मा और सत्य चित्त आनंद माने सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये कहानी को लेके भी मैंने ये काम किया है। तो 2 कहानियां मिल गई है और ये आर्ट वर्क का निर्माण हुआ है। तो ये और उसके बीच में मैंने बुद्धा लगाए हैं। वो बुद्धा तो मैंने काफी टाइम पहले बनाए थे, लेकिन अभी पहली बार एग्जिबिट कर रहा हूँ, लेकिन वो भी उनकी बात है। तो वो ऐसे था कि मुझे बुद्धा बहुत पसंद है, तो मैं बार बार बुद्धा बनाता रहा। तो अभी नया नया एंड्रॉइड फोन उनके हाथ में आया था, तो वो गूगल सर्च करते थे, यूट्यूब सर्च करते थे। तो यूट्यूब सर्च करते करते एक बार उनको वीडियो एक हाथ में आ गया कि जापान का कोई वीडियो उनके हाथ में आ गया। तो एक दिन मेरे स्टूडियो में आए और मेरे को बैठ के बोलते हैं, यार तू तो बुद्धा कैसा कांच का बनाता है, देख मेरे पास एक वीडियो है, जापान में बुद्धा तो सोने के बनाते हैं। मैंने बोला वाह क्या बात है। तो उन्होंने वीडियो मुझे बताया कि वहां पे जो दर्शनार्थी है वहां और श्रद्धालु है, वो सोना लेते हैं और फाउंड्री में ऐसे सोना डालते हैं और भगवान बुद्ध को चढ़ाते हैं। तो ऐसा एक वीडियो उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने बोला मैं भी चलो आपके लिए एक बार सोने का बुद्धा बनाऊंगा। तो मैंने ग्लास कास्टिंग किया है और कास्टिंग के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया है। मैंने उनको बताया देखो मैंने भी सोने का बुद्धा बनाया है। तो बस ये उनकी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ये भी मैंने काम किया है। और दूसरा एक आप देख रहे हो कि ऐसे फैला हुआ एक आर्ट वर्क है, तो वो मैंने बेसिकली स्नेक प्लांट बनाया है। तो मेरे बापू को उनके आश्रम पे ज्यादातर देखो तो सारे फूलों वाले पौधे मिलेंगे आपको। यानी उनको गुलाब बहुत पसंद है, चंपा, फिर मोगरा तो बहुत ही उनको पसंद है। तो जहां भी देखो उनके आश्रम पे है ना ऐसे फूलों वाले ही होते हैं पौधे। जब भी मेरे घर आते तो वो सुबह सुबह मेरे बेडरूम में आते और खिड़की खोल के हम दोनों वहां पे चाय की चुस्की मारते रहते। तो मेरी जैसे ही बेडरूम की खिड़की खोलते तो वहां पे स्नेक प्लांट थे। मैंने अलग अलग तरीके के स्नेक प्लांट लगाए क्योंकि वो अच्छी तरह ग्रो हो और इसका एक अलग वैल्यू भी है। और दूसरा कि उनको पानी कम डालना पड़ता है, उसका केयर बहुत कम करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे पौधे लगाए। तो वो वहां बैठ के हम दोनों गोष्ठी करते हो और बातें निकलती तो ऐसे देखते तू बहुत आलसी है। मैंने बोला क्या हुआ? यार तू ये सारे स्नेक वाले प्लांट डाले, कुछ फूल वाले पौधे डाला कर। मैंने बोला बापू अपने से ये होता नहीं है, ठीक है, इसकी इतनी आप जैसे एक बच्चे की तरह पौधे को पालते हो, मेरे से नहीं हो सकता और मुझे से हो नहीं पाता। सही में मैं आलसी हूँ उस चीजों में। तो ऐसे बात चलती रहती, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे ऐसे स्नेक प्लांट को देखते और देखते क्या मस्त कलर है उसका टेक्सचर कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा ग्रो हुआ है, उसकी लचक देख। तो ये सारी बातें थी उनकी। तो वो बातों को लेके मैंने स्नेक प्लांट को बनाने का प्रयास किया है। और वैसे ही जो उनको जो पसंदीदा ग्रीन कलर था, तो वो 2 कलर को लेके मैंने प्ले किया है और वो बनाने का प्रयास मैंने किया है। वैसे ही आप थोड़ा आगे आओ तो देखो तो मैंने 3 पेड़ बनाए और पेड़ मैंने पत्थर में से निकाले हैं। तो उसकी भी एक कहानी है, उनकी वही यादें बातें। तो जब मैं कॉलेज पास हो गया, मेरे पास कुछ काम नहीं था, मेरा कोई काम नहीं खरीदता था, तो एक स्ट्रगल पीरियड बहुत खतरनाक चालू हो गया था मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मैं बार बार मेरे बापू को बोलता मैं तो साधु बन जाऊंगा, मेरे को तो यहाँ रहना नहीं है, मैं तो भाग जाऊंगा। तो मेरा नेचर जानते थे, तो मेरे को बहुत ही पुशअप और सपोर्ट बहुत देते थे। तो मेरे को एक बात उन्होंने बोला था उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है वो चीज,
कि एक पत्थर का सीना चीर के एक पेड़ खड़ा हो सकता है, एक पत्थर का सीना चीर के एक पेड़ खड़ा हो सकता है, तो तू तो इंसान है यार, तू क्यों इतना वो हो रहा है परेशान, तू भी कुछ कर लेगा, मैं तेरे साथ हूं ना, क्यों डर रहा है। तो इनका एक सपोर्टिव नेचर था और ऐसी बातें करके मुझे ऐसे सपोर्ट देते, तू कुछ भी कर मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तो वो सपोर्ट देने वाला उनका नेचर वो उसमें मैंने बताया है। और दूसरी उनकी एक और अच्छी बात थी, वो मुझे बार बार बोलते थे कि पेड़ कितना भी सुंदर हो, पेड़ कितना भी सुंदर हो, उसमें फल और फूल ना लगे ना, तो पेड़ कितना भी सुंदर हो, लेकिन काफी लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो तू मेरा बेटा है, मुझे पता है तू अच्छा ही काम करने वाला है, और तू 100 अच्छे काम करेगा और एक बुरा काम तेरे से हो जाएगा, तो लोग तेरे 100 काम को भूल जाएंगे और तेरे अच्छा 100 काम है उसको भूल जाएंगे, और एक जो तेरा बुरा काम है ना वही लोग नजर में रखेंगे और तेरे को बहुत सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन कभी भी डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये 2 बातें उनकी ऐसी मुझे सपोर्टिव थी, तो वो बातों को लेके मैंने ये काम किया है। तो ये पूरा शो उनको ऐसे डेडिकेट किया है मैंने कि उनकी ही बातें हैं, उनके साथ जो गोष्ठी हुई थी, हमारे दोनों के जो विचार थे, तो उसको मैंने बनाने का प्रयास किया। जी विजय भाई, आपके शो में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति दिख रहे हैं, तो उनके विषय में थोड़ा सा आप परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा शो इनॉग्रेशन करने के लिए मैंने 3 महानुभावों को बुलाया था। उसमें श्री डॉक्टर कुमारपाल देसाई सर, जो गुजरात विश्व कोष के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे हैं मिस्टर एनके पटेल, जो सन बिल्डर के प्रेसिडेंट हैं और सीईओ है। और तीसरे थे मिस्टर सुब्रतो भौमिक, जो एक डिजाइनर है। उनको तो कौन नहीं जानता, वो इतने दिग्गज आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छे शो उनके हैं, और वो हर बार सपोर्टिव नेचर है उनका। तो मैंने ये तीनों को जब बताया कि मेरे को ऐसा शो करना है, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि आप शो कर रहे हो तो हम जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इनॉग्रेशन है और सुबह सुबह 9 बजे मुझे सुब्रतो भौमिक सर का फोन आता है कि विजय सो सॉरी। मैंने बोला क्या हुआ सर? बोले आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके शो के इनॉग्रेशन में नहीं आ पाऊंगा। मैंने बोला सर, यदि आपका ये माहौल ऐसा है और आपका तबीयत ठीक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेस्ट कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आ जाऊंगा। बोले नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने बोला ओके, अभी कुछ कर नहीं सकते। तो करीब 3 बजे का टाइम हुआ, मुझे फिर से फोन आ रहा है, विजय तेरा शो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तेरे शो में जरूर आ रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी हुई। बहुत सारे अच्छे मेरे आर्किटेक्ट दोस्त आए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आए हैं। मिस्टर बीवी दोषी सर, जो काफी टाइम से अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उन्होंने मेरे शो का भी विजिट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा इसीलिए लगा कि मेरा शो एकदम 100% सक्सेसफुल रहा। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत अचीवमेंट वाला था कि मैं सारा चीज स्टूडियो ले गया था, गैलरी में डिस्प्ले करने ले गया था, लेकिन वहां से मैं खाली हाथ आया। वो मुझे एक अच्छा चीज लगा कि इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया।
जी विजय भाई, इस तरह के शोज़ कोविड के बाद इतना सक्सेसफुल जाए ये बहुत कम देखने को मिलता है, और आप इसी तरह निरंतर प्रगति करते रहें और हम आने वाले समय में ये काम, इस तरह के आपके काम इंडिया आर्ट फेयर में भी देखना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को व इस एग्जीबिशन विज़िट को यहीं रोकते हैं, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि इस तरह के आर्ट के प्रति जो एक अवेयरनेस है वह आप लोग जो अहमदाबाद के शो नहीं देख पाए हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उनके काम का आनंद उठा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।